Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We are in the book of Galatians, हम गलातियों की किताब में से पढ़ रहे हैं and we already saw the whole chapter 1, and then we started with chapter 2. एक पूरा अध्याय हमने खत्म कर दिया, अभी दूसरे में हम चालू करते हैं। And we saw that how Paul had planted the church in the region of Galatia. हमने ये भी देखा कि पौलुस ने कैसे गलातियों के बीच में ऐसे कलीसिया स्थापित की। We saw the cities वहाँ के नगर देखे in Acts chapter 13 and 14. प्रेरित 13 और 14 में हमने देखे। Then what he went through to plant those churches. और क्या क्या वो गुजरा जिसके लिए वो ऐसे कलीसिया की शुरुआत करनी पड़ी। And later we saw that how the Jewish believers, the Judaizers, they entered into those churches and started preaching a false gospel. और हमने यह भी देखा कि कैसे यहूदी लोग ऐसे उन कलीसियाओं में घुसकर ऐसे कोई गलत ही सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। And then Paul had to defend himself and his message by which he is writing to the Galatians. पौलुस को ये साबित करना पड़ा कि जो वो बता रहा है वो सच है। And we saw how he defended himself, that he is the true apostle. और उसने ये कैसे साबित किया कि वही सच्चा प्रेरित है, ये भी हमने देखा। He was not different from all of the apostles. वो दूसरे प्रेरितों से अलग नहीं था, He was no less than them. उनसे कुछ कम भी नहीं था। And his message was validated by the king. और उसका जो सुसमाचार था वो राजा के द्वारा ठहराया गया था। It was validated by the apostles also. प्रेरितों ने भी उसके साथ सहमति की जब वो ये प्रचार कर रहा था। So he defended himself that he had this spiritual calling. उसने यह साबित किया कि उसकी ये आत्मिक बुलाहट थी। That too directly from the king. राजा के तौर से ही आया था ये बुलाहट। And then since these apostles like Peter and John and James, पतरस, यूहन्ना, ये सारे जो प्रेरित है, they approved him, they validated him, उन्होंने वो सहमत थे वो जो कुछ कह रहा था उसके साथ। and they agreed that he had a calling to go to the Gentiles and preach. और ये भी सहमत थे कि वो अन्य जातियों के लिए बुलाया गया ताकि वो वहां जाकर उनके बीच प्रचार करे। So we were in chapter 2 हम दूसरे अध्याय में थे, and verse 9. दूसरे अध्याय के 9 में। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगत का दाहिना हाथ दिया और अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास। No. So here it says that James and Cephas and John, that Peter and John, they seem to be the pillars. They were the leaders of that time, the churches, and they understood that Paul had received this grace from God. This grace is what? The spiritual calling that he got from the king himself. Then he went through a preparation for 3 years. That also we saw. ये प्रेरितों ने ऐसे जान लिया कि पौलुस की बुलाहट थी राजा की ओर से, मतलब यीशु मसीह की ओर से, ताकि वो अन्य जातियों के बीच जाकर प्रचार कर सके। और वो 3 साल ऐसे उसने ये प्रयास किया और पढ़ाई की ताकि वो जाकर प्रचार कर सके। The king himself prepared him. राजा ने खुद स्वयं उन्हें तैयार किया। And then he was sent. और फिर पौलुस को भेजा गया। So they sent Barnabas accompanying with Paul पौलुस के साथ बरनबास को भी भेजा उन्होंने to the Gentiles. अन्य जातियों के पास जाने के लिए। So we understand all this. हम ये सब समझ चुके हैं। But now the next verse, अभी उसका 10वां वचन, and this is the part that I want all of us to ponder upon. हम ये चाहते हैं कि हम सब जो है ये 10वें वचन पर ज्यादा ध्यान दें। To spend some time in this verse, इसी वचन पर कुछ ज्यादा समय बिताएंगे हम, because this verse is supposed to be read and understood and gone through. Yeah, just go through that क्योंकि हम once. ऐसे ही ये वचन पढ़ते हैं और इसके ऊपर चले जाते हैं। अभी केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले और इस काम को करने में आप ही यत्न कर रहा था। Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. So here Paul is saying, he's talking about a duty. अभी पौलुस को यहाँ पर एक कार्य दिया गया था, उसके बारे में वो बात कर रहा है। Because this verse maybe we read, हो सकता है हमने ये वचन पढ़ा, but we just
saw, understood, okay, remembering the poor, okay, yes. And then we went to the next verse. हमने ऐसे पढ़ा होगा कि हाँ कंगालों की सुधि ले, और उसके बाद हम आगे चले गए रहेंगे दूसरे वचन पढ़ने। But now today we want all of us to ponder here. लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम सब इस वचन पर ध्यान दें, अभी जो हमने पढ़ा। A duty. एक कार्य दिया गया था पौलुस को, Remember the poor. कंगालों की सुधि ले। Now before we go into what is to remember the poor, we need to understand some things. अभी ये जानने से पहले कि हम कंगालों की सुधि कैसे ले, हमने कुछ चीजों को समझना जरूरी है। First of all, you need to know that poverty is not a virtue. ये हम पहले ही जाने कि कंगाल होना कोई ऐसे सौभाग्य की बात नहीं है, And wealth is no sin. और पैसे रहना कोई पाप नहीं है। Also, wealth is not morally good and poverty is not morally evil. पैसा रहना जो है वो नैतिक तौर से अच्छा, और पैसा नहीं रहना नैतिक तौर से अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। So a man can be rich and at the same time good. एक हो सकता है एक अमीर व्यक्ति रहे और वो अच्छा भी हो सके, And a man can be poor and at the same time be evil and cruel. हो सकता है कि कोई गरीब रहकर ऐसे क्रूर रहे। So virtue, what is virtue? अभी ये जो गुण है, जो ऐसे अच्छा सौभाग्य है, See, it is like a plant. You know a plant, it does not depend on the surrounding. एक पौधा यदि हम लगाए तो इर्द गिर्द जो चल रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पौधे पर। It depends on the hands that water it. जो हाथों से पानी डाला जाता है उस पर उसका प्रभाव होता है। So when we attract virtue, when we have grace, जब हमारे पास अनुग्रह रहता है, so it is not because of our circumstances. हमारे जो हालात है उनके कारण नहीं होता है, Whether you be rich or poor, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, but it is about the God who plants that grace in us. लेकिन खुदा के द्वारा होता है, जो खुदा का अनुग्रह हमें आता है उसके द्वारा। It doesn't matter what your circumstances. ये तुम्हारे हालात कुछ भी हो सकता है इसके बीच। You don't get stronger in faith just because your life is easy. आपका विश्वास आगे नहीं बढ़ता और दृढ़ नहीं रहते हो क्योंकि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। Or you don't lose grace just because you are poor and you are struggling. आप अनुग्रह ऐसे नहीं गंवाते हो क्योंकि आप गरीब हो। Grace comes from God alone अनुग्रह जो है वो खुदा की ओर से ही आता है, and not from your salaries आपके जो आप वेतन कमाते हो या पैसे कमाते हो उसके द्वारा नहीं, or not from your struggles. या आपके संघर्षों के द्वारा नहीं। So the life of God in the soul, जो हमारा खुदा का जो प्राण, खुदा का जीवन जो हमारे प्राण में है, it comes from God alone. ये खुदा के तौर से ही आता है। Your external circumstances or conditions, आपके जो बाहरी ऐसे हालातें हैं, it may affect you, हो सकता है उनका प्रभाव आप पर पड़े, but they don't produce grace in you. लेकिन उसके द्वारा आप में अनुग्रह नहीं आता है। Your external circumstances can be your wealth, your status, your comfort. हो सकता है आपके जो बाहर के ऐसे हालात हैं, आपके पैसे, आपका स्तर जो है, You might even lose your job हो सकता है आप अपनी नौकरी भी गवा दे, or get promoted. या आपको प्रमोशन मिल सकता है आपके नौकरी के जगह पर। Neither of them will grow you in your spiritual life. ये दोनों चीज भले हो जाए लेकिन आप आत्मिक तौर से नहीं बढ़ेंगे खुदा के साथ। It means neither of you is going to clean your soul. दोनों में से कोई भी कार्य, यदि आप ऐसे नौकरी गवाए या ऐसे प्रमोशन पाए, दोनों के कारण आपका ऐसे प्राण कभी शुद्ध नहीं होगा, Unless you are rooted in God's word, in prayer and dependent on the Holy Spirit. जब तक आप खुदा के वचन में ऐसे गंभीर नहीं है, प्रार्थना करते रहे और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे, तब तक। Now apart from this, I want to tell you, इसके अलावा एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, and it is an undeniable fact, और ये हम ऐसे इसे मुंह नहीं फेर सकते हैं, that God was pleased खुदा प्रसन्न हुए to choose the poor of this world इस संसार के कंगालों को चुनने, for the most part of His kingdom. अपने राज्य के बड़े कामों के लिए। He is pleased to plant His grace in the soil of poverty. खुदा बहुत प्रसन्न होते हैं कि अपने अनुग्रह का बीज जो है गरीबों के बीच में बोने। God in His wisdom, खुदा अपनी बुद्धि में He does not choose mighty men. वैसे सामर्थशाली व्यक्तियों को नहीं चुनते हैं, He does not choose wise men. वैसे बुद्धिमान लोगों को भी नहीं चुनते हैं, But He chose the poor of this world to be the heirs of the kingdom. इस संसार के गरीबों को चुनते हैं ताकि वो खुदा के राज्य को ग्रहण कर सके। Go to James, याकूब में जाते हैं, book of James chapter 2 verse 5. याकूब 2:5 पढ़ते हैं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें
उसमें सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है और इसमें हम जान Chapter 2, verse 1. I'll read in English. Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उसके राज्य के अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उसमें और जो उसमें प्रेम रखते हैं. The poor of this world who are rich in faith. इस संसार के कंगाल जो से विश्वास में बड़े हैं, And we are going to see how they are rich in faith. और हम ये देखेंगे कि उनका विश्वास कैसे बड़ा है. So the Lord's people, जो खुदा के लोग हैं, to a very large extent, बहुत बड़े समय के लिए they are the poor of this world. इस संसार के गरीब हैं. Very few of them have authorities, they wear crowns, have expensive cars. बहुत कम ऐसे रहेंगे जिसके पास अधिकार है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे पैसे हैं. Many saints of God, खुदा के बहुत सारे संत जो है, they are unknown, we have not seen them. वो अनजान है, हम उन्हें नहीं जानते, कभी देखे भी नहीं है उनको. They struggle in their day-to-day lives, वो अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, but yet they shine. फिर भी वो ऐसे चमकते हैं. They shine in faith, विश्वास में चमकते हैं. depending daily upon daily वो रोजमर्रा के जीवन में खुदा पर निर्भर रहते हैं. on the provisions that God gives, जो खुदा उन्हें देता है उस पर निर्भर रहते हैं. trusting Him उन खुदा पर ही विश्वास रखते हैं, for meal after meal, एक के बाद एक भोजन के लिए भी. believing that He is going to supply all my needs, वो यह विश्वास करते हैं कि खुदा उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. all their wants जो कुछ भी उन्हें चाहिए सब कुछ खुदा ही पूर्ण करेगा. out of the riches of His fullness. खुदा के भरपूरी के तौर से उसे सब मिलेगा. You may not have the best house, हो सकता है आपके पास सबसे अच्छा घर ना हो, you may not have the best car, आपके पास सबसे बढ़िया गाड़ी ना हो, but if you open your house for Bible study or prayer, you are rich. यदि आप अपने घर को खुदा के वचन सीखने के लिए खोले या प्रार्थना के लिए खोले तो आप बहुत अमीर हो. You are rich in the kingdom. आप राज्य में बहुत अमीर हो. So when we read, remember the poor, जब हम ये पढ़ते हैं कि गरीब कंगालों की सुधि लो, that tells us that the king has people who are poor. इसका ये अर्थ होता है कि राजा के पास ऐसे लोग हैं जो कंगाल है. In this world, इस संसार में वो लोग रहते हैं. the Lord has a poor people. खुदा के गरीब लोग या कंगाल लोग रहते हैं. And they shine. और वो ऐसे प्रकाश से चमकते हैं. हमने जैसे आपको पहले कहा, Day after day depending on God, nobody sees them. रोजमर्रा की चीजों के लिए वो खुदा पर निर्भर रहते हैं, कोई उन्हें नहीं देखता है. They are not famous. वैसे प्रसिद्ध नहीं है, You don't know about them. हम उनके बारे में जानते नहीं है. But still they give God the glory. फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को महिमा देते हैं. There can be that you see a person rich in faith and you say, oh, glory to God for this man. हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका विश्वास बहुत बड़ा है, खुदा को महिमा देते हैं उसके विश्वास के लिए. They might be famous and you see, oh, he is very rich in faith, and you give glory to God. हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध हो और इसीलिए आप इसे खुदा को महिमा देते हैं. But then such poor believers, nobody sees them, nobody knows them. लेकिन जो गरीब ऐसे विश्वासी रहते हैं उन्हें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखता है. But still God gets the glory. इसके बावजूद खुदा को महिमा मिलती है उनके द्वारा. You know why? आप जानते हो क्यों? Even if nobody sees them, still God is getting the glory. You know why? भले कोई उन्हें नहीं देखे फिर भी खुदा को महिमा मिलती है. आप जानते हो क्यों? Because God sees them. क्योंकि खुदा उन्हें देखता है. A preacher said, एक प्रचारक ने एक बार कहा, I think Paul Washer had mentioned it, पॉल वॉशर ने ऐसे कहा that there is a field, कि एक ऐसे खेत है, I'm just paraphrasing it, हम आपको ऐसे छोटे में समझा रहे हैं. there is a field full of grass, एक खेत में पूरा ऐसे घास है, a big field, एक बहुत बड़ा खेत, and there is a very small flower, और इस सब के बीच में एक छोटा सा फूल है, which is very beautiful, बहुत सुंदर फूल है वो, but nobody sees it. लेकिन उस फूल को कोई नहीं देखता है. Still God gets the glory. इसके बावजूद खुदा को महिमा मिलती है. Why? Because God sees that flower. क्यों? क्योंकि खुदा उस फूल को देखते हैं.
that is true about every poor believer. ये सच्ची बात है हर एक जो गरीब विश्वासी है उनके लिए। So we need to know the fact that Lord has a poor people. हमने ये जानना जरूरी है कि खुदा के जो लोग रहते हैं वो गरीब भी होते हैं। And Lord allows some of his children to be poor. और खुदा से अनुमति देते हैं कि उनके कुछ बच्चे जो है वो गरीब रहे। But why? लेकिन ऐसे क्यों? God could make them all rich just in seconds. चाहे तो खुदा सबको अमीर बना सकते थे कुछ ही सेकंडों में। If he's pleased, यदि खुदा आपसे प्रसन्न है, he can bring bags of gold at your door. सोने से भरे हुए बैग आपके दरवाजे पर लाकर रखते हैं। He could even rain bread from heaven. स्वर्ग से आपको रोटी भी मिल सकती है। But in his sovereign will, लेकिन खुदा की जो इच्छा है, he allows his people to remain poor. खुदा ऐसे अनुमति देते हैं कि उनके जो लोग रहे वो गरीब ही रहे। Everything on earth belongs to him. सब कुछ जो इस पृथ्वी पर है सब कुछ खुदा ही का है। He could even make a rich man खुदा ऐसे भी चाह सकता था कि एक अमीर व्यक्ति bring all his wealth and give to the poor अपना सारा धन दौलत लेके आके गरीबों में दे दे, if he is pleased. यदि वो प्रसन्न है तो। Because all the hearts of men are in hands of God. क्योंकि सारे मनुष्यों के हृदय जो है वो खुदा के हाथ में है। He can turn their minds quickly. खुदा ऐसे ही उनके मन फेर सकता है। But then why? लेकिन क्यों? Why we see that some of his children are poor? लेकिन हम ऐसे क्यों देखते हैं कि खुदा के कुछ बच्चे जो है वो गरीब रहते हैं? Let's see some of the things. कुछ बातें देखते हैं। One of the reasons is to teach us एक कारण यह है कि हमें यह सिखाए how grateful we should be हमने कितना अपने आप को सौभाग्य मानना चाहिए for all the comforts that we have received, हमारे पास जो कुछ भी है मिला है उसके लिए। for all the comforts that God has bestowed upon us. खुदा ने हमको जो कुछ भी दिया है उसके लिए। Just ask for yourself. अपने आप से ही पूछ लो। When we see somebody wanting bread, जब हम देखते हैं कि कोई रोटी के लिए तरस रहा है, does not your bread become sweet? क्या आपकी रोटी ज्यादा मीठी नहीं लगती है आपको? Seeing someone begging on the streets for bread, कोई रोटी के लिए ऐसे रास्ते पर ऐसे भीख मांग रहा है, would you not look up to heaven and thank God that He provided you the bread? क्या आप स्वर्ग की ओर देख के खुदा को धन्यवाद नहीं देंगे क्यों खुदा ने आपको रोटी दी है? If not, then you are very poor. यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो आप इसका मतलब ये है आप गरीब है। Just imagine if we all are made rich, मान लो कि हम सब बहुत अमीर हैं, then how are we going to know the value of His mercies? तो हम खुदा के अनुग्रह और खुदा की जो दया है हम पर वो कैसे हम जान सकेंगे? But He puts the poor side by side with the rich. लेकिन वो गरीबों को और अमीरों को साथ साथ रखते हैं खुदा। And many people live in comfort, और बहुत सारे लोग ऐसे सारे शान शौकत में रहते हैं, yet they rarely thank God for all. इन सब चीजों के बावजूद वो खुदा को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। Just think, when a food is put before you, आप ही सोचो जब आपके सामने खाना परोसा जाता है, do you make faces? क्या आप ऐसे मुंह बनाते हो? Do you scold your wife to give food late? क्या आप आपकी बीवी को डांटते हो कि अरे खाना बहुत देरी से मिला आज? Do you give names to the food? क्या आप खाने को ऐसे नाम रखते हो? Oh, you ungrateful ones. तुम ऐसे जो खुदा को धन्यवाद नहीं देते ऐसे लोग। It would be better that you could sit at the table of a poor. ये अच्छा होता कि तुम गरीबों के साथ बैठकर खाना खाते। Then you would understand the grace that God has given you. तब तुम समझते कि खुदा ने क्या अनुग्रह दिया है तुम पर। You who are discontent, आप जो संतुष्ट नहीं हैं, you murmur that there are things not there in our houses. आप ऐसे कुड़कुड़ाते हो कि हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है। If at all you would experience what the poor endures day after day, यदि आप इन चीजों का अनुभव करें कि जो गरीबों पर गुजरती है रोजमर्रा के जीवन में, then your hearts would be thankful. तो आपके हृदय से आप खुदा को धन्यवाद देते हैं। That is one of the reasons why He has a poor people in His kingdom. इसीलिए एक कारण ऐसा है कि खुदा के राज्य में से गरीब लोग भी हैं। Because you will not understand the mercies that you have been shown by this king unless you see his other people that who are not receiving those mercies. वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि खुदा के द्वारा आप पर क्या क्या अनुग्रह हुआ है जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि जिस पर अनुग्रह नहीं हुआ है वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं। I want to give you an instance, an example. हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। I know of a girl who loves the Lord. हम एक लड़की को जानते हैं जो खुदा से बहुत प्यार करते हैं।
once there was a big cyclone in her city, एक बार ऐसे हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आया उसके नगर में, and there was flood everywhere in the neighborhood and everywhere there was सब flood. जगह पर बाढ़ आई थी. She loves the Lord, खुदा से बहुत प्यार करती है वो लड़की. and suddenly they had to vacate from there. They had to go away from there, अचानक ऐसे हुआ वो बाढ़ के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा. because if they would stay there, the houses would have been broken, everything would have been gone. क्योंकि यदि वो वहाँ पर रहते, बाढ़ के कारण उनके घर टूट जाते, सब नाश हो जाता. So she and her family had to go along with their neighbors to find some shelter. उसको अपने परिवार वालों और पड़ोसियों के साथ कहीं और जाना पड़ा घर ऐसे रहने के लिए. And there was a nearby school where she went and stayed there for night. और वहाँ बाजू में ही एक स्कूल था, वो वहाँ जाकर रही. Since it was in a good height, so they went on the first or second floor and they stayed there. वो स्कूल ऐसे ऊंचाई पर था और वो फर्स्ट या सेकंड मंजिले पर ऐसे जाकर रहे उस स्कूल में. Just imagine, heavy rains, no electricity, बहुत बारिश और कोई बिजली नहीं वहाँ पर. and she belongs to the Lord. लेकिन वो खुदा की बेटी है, She is a kingdom citizen. वो राज्य की नागरिक है. What would she do? वो क्या करती है सब चीजों के बीच में? What would many of us would do? हम में से क्या सब लोग क्या करते हैं? Would we sit and murmur that why this is happening with me? I am the citizen of your kingdom. How can this happen with me? क्या हम वहाँ पर बैठ के ऐसे कुड़कुड़ाते कि हम तो तुम्हारे राज्य के नागरिक हैं, तो हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है ये सब? But that's not what she did. लेकिन ये उसने नहीं किया, उस लड़की ने. Somehow they managed to have something. थोड़ा कुछ उन्हें मिला वहाँ पर खाने के लिए. She tried all she could जो वो कर सकती थी सब कुछ उसने किया in that situation. उस ऐसे माहौल में. And then when the floods were settled, when the water had settled, और जब बाढ़ चली गई थी और सब पानी ऐसे नीचे आया, they came back to their house. वो अपने घर पे वापस आए. Some houses were already broken. कुछ घर ऐसे ही टूट चुके थे बाढ़ के कारण. Some parts were already broken of her own house. उसके घर के भी कुछ हिस्से टूट गए थे. And then they lived there for 1.5 months without electricity. 1.5 महीना उस घर में रहे वो बिना कोई बिजली के. There was no electricity for 1.5 months in that whole area. वो पूरे क्षेत्र में ऐसे 1.5 महीने के लिए कोई बिजली नहीं थी. If you sit for just 1 or 2 hours without electricity, or if we just put on the fan right now, what is going to happen to us? यदि आप 1-1.5 घंटा या अभी हम सारे फैन बंद करें तो क्या होगा हमारा हाल? But she never murmured against God. She still trusted in the Lord. वो कभी खुदा के सामने से कुड़कुड़ाई नहीं, हमेशा उसका विश्वास खुदा पे ही बना रहा. And that is why, you see, I am getting blessed because I know her. इसके द्वारा हम आशीष पाते हैं क्योंकि हम उस लड़की को जानते हैं And I see her faith. और हम उसका विश्वास देखते हैं. And I, who is in the comfort, sitting here with whole electricity 24/7, I am increasing in my faith. और हमारे साथ ऐसे पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है हमारे पास, तब हमारा विश्वास बढ़ रहा है उस लड़की का विश्वास देखकर. And I am grateful to God that we have this electricity. और हम खुद को ऐसे सौभाग्य समझते हैं कि हमारे पास ये सारी बिजली और सारी चीजें हैं. So the poor are in that situation to teach us. गरीब उस क्षेत्र में है या उस ऐसे ये मुश्किलों में है, हमें यह सिखाने who are more favored in temporary things. हम पर ज्यादा अनुग्रह दिया गया है कुछ चीजों के लिए. So that we should be thankful for the provisions that God has made for us. क्योंकि हम खुदा को धन्यवाद देते रहे जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है या दिया है. And remind us that all that we have is from Him. और हमें ये बार बार याद दिलाने जो कुछ भी हमारा है वो खुदा का ही है. Nothing belongs to us. हमारा कुछ नहीं है इसमें. Second reasons I could say दूसरा is कारण, that He shows His sovereign will. खुदा अपनी इच्छा जताते हैं. It teaches that God makes choices without seeing the circumstances. खुदा हालातों को देखे बिना अपने चीजें चुनते हैं. Out of His own will. अपने खुद की इच्छा के कारण. His choices are not based on your degrees and statuses. खुदा जब आपको चुनता है तो आपकी डिग्रियां क्या है या आपका स्तर क्या है समाज में, वैसे कुछ नहीं देखते हैं. On your wealth or your position. आपके पास कितना पैसा है कुछ नहीं देखते हैं खुदा. He chooses whom He wills. खुदा उन्हें चुनता है जो उन्हें पसंद है वो. That's what shows His sovereign will. इसके द्वारा हम समझते हैं कि खुदा की इच्छा कैसे चलती है. Just think, if you would have chosen only the rich man, then what we would call him?
यदि खुदा सिर्फ अमीरों को चुनता तो हम क्या बुलाते खुदा A को? partial God. कि खुदा पक्षपात करते हैं? He makes choices out of his own will. खुदा किसी को भी चुनता है तो अपनी खुद की इच्छा के कारण ही चुनता है। And his choices goes against human expectations. और खुदा जब चुनते हैं तो हमारी बुद्धि और हमारी समझ के काफी परे चले जाता है। God says, खुदा ऐसे कहते हैं, you would want me to choose the kings and the queens तुम चाहते हो कि हम राजा और रानियों को चुने first, पहले, but I would choose the servants in their kitchens लेकिन हम उनके जो किचन में दास है उनको पहले चुनेंगे, before I choose their masters. उनके स्वामियों को चुनने से पहले। God says you would want me to choose the counselors and wise men, तुम ऐसे चाहते हो कि हम ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको चुने, but God says I would take the fool first, लेकिन खुदा ऐसे कहता है कि मैं मूर्ख को पहले चुनूंगा, so that I will teach you to despise the wisdom of man. ताकि खुदा तुम्हें यह समझा सके कि तू जो लोगों की बुद्धि है उसे तुम कैसे ठुकरा सकते हो। He says I would take the poor first before the rich, खुदा ये कहते हैं कि मैं गरीबों को पहले चुनूंगा, अमीरों को चुनने से पहले, so that I might humble your pride ताकि तुम्हारे घमंड को मैं नीचा कर सकूं, and teach you that there is nothing in man that makes me choose him. और ताकि तुम्हें यह समझा सके कि मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसके कारण खुदा हमें चुने, But in the sovereign will of God. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की इच्छा के द्वारा होता है। Now again, another reason why there are poor people, एक और कारण गरीब लोग क्यों हैं? so that His power, His grace can be seen, ताकि खुदा का सामर्थ, खुदा का अनुग्रह दिखाई दे सके, can be shown more brightly. ताकि और उसको ऐसे दिखाया जा सके, दर्शाया जा सके। If all the Christians were rich, how would they know what faith is? यदि सारे क्रिस्ती जो है वो ऐसे अमीर रहते तो वो विश्वास क्या है वो कैसे जानते? How would they learn what is faith वो विश्वास के बारे में कैसे सीखते? unless they see someone who has no home, यदि वो ऐसे किसी को न देखे जिसके पास कोई घर नहीं है, nowhere to lay their heads? उनका सर रख के सोने उनके पास जगह नहीं है, When they see someone who is homeless, जब वो ऐसे किसी को देखे जो बेघर है yet they say, I will still trust in the Lord, और वो व्यक्ति फिर भी ऐसे कहता है फिर भी मेरा विश्वास जो है वो खुदा पर ही रहेगा, then the faith will increase. फिर हमारा विश्वास बढ़ता है। These are the people of the kingdom. ये होते हैं राज्य के नागरिक। When you see someone who has only bread and water to eat, जब हम देखते हैं किसी के पास सिर्फ रोटी और पानी है but they still glory in Jesus, और फिर भी वो यीशु मसीह को ही महिमा देते still they हैं, say Jesus is enough. फिर भी वो कहते हैं कि यीशु ही काफी है। That's when you learn what faith is. तब हम सीखते हैं कि विश्वास क्या होता है। Someone facing daily trials, जो रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलों से गुजरता है but they still keep hope in God. लेकिन उनका विश्वास फिर भी खुदा पर ही निर्भर रहता है, They still put their faith in Christ. उनका पूरा विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर ही रहता है। A rich person would say that I also have faith that tomorrow God is going to take care of me. एक अमीर व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि मेरे पास भी विश्वास है कि यीशु मसीह सब कुछ संभालेगा हमारे बारे में। But then we would say, yeah, I know, you know that tomorrow God is going to take care of you. हम ये कहेंगे कि हाँ हम तो जानते हैं कि आप जानते हो कि कल खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, Because you have enough money at home to buy things. क्योंकि तुम्हारे घर में काफी पैसा है ताकि तब तुम सब कुछ खरीद सको। You have a salary that comes. तुम्हारे पास पैसे आते हैं, हर महीने ऐसे वेतन आता है, So there is no much faith to see in that. इसमें ज्यादा विश्वास कुछ नहीं है हमारे पास देखने के लिए। There's no faith to see. You have everything with you. You have the money to buy. इसके लिए कुछ ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, जो चाहिए खरीद सकते हो। But when a poor who has nothing, लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, yet say that I will trust in the Lord, इसके बावजूद वो कहता है कि मेरा विश्वास खुदा पर ही है, that demonstrates true faith. ये दर्शाता है कि उसका सच्चा विश्वास कैसा है उस व्यक्ति का। That shows you what faith is. ये दिखाता है कि विश्वास क्या होता है। It is the same as the example that I gave you. ये वैसे ही है जैसे उदाहरण आपने आपको दिया था वैसे। God's grace is proved strong खुदा का अनुग्रह ऐसे बहुत ऐसे भरपूरी से दिखाया जाता है when His people go through trials, जब ऐसे लोग संघर्षों से गुजरते हैं तो उनका विश्वास दिखाई देता है। when they go through the storms of life, जब वो जीवन में से हालातों से गुजरते हैं तब, when they face sorrows and hardships, जब उन पर कठिनाइयां आती है तब, because they stand still इसके बावजूद वो स्थिर खड़े रहते हैं खुदा में, without murmuring.
बिना कुड़कुड़ाए। Just an example, take a company is manufacturing swimming belts. एक कंपनी ऐसे स्विमिंग के बेल्ट बना रही है, We would not know how strong it is unless and until it is tested. हम नहीं जानेंगे कि कितना मजबूत है वो जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक। You will see a building and you will say that it is strong, हो सकता है आप एक बिल्डिंग देखो और सोचो कि हाँ ये बिल्डिंग काफी मजबूत है, but you would not know how strong it is if it has to be tested. There has to be testing going on that for that building. जब तक वो बिल्डिंग पर टेस्टिंग नहीं हो तब तक आप नहीं जान सकोगे कि वो बिल्डिंग कितना मजबूत है। So same way, you wouldn't know what faith is. ऐसे ही होता है कि आप विश्वास को जानोगे ही नहीं, You wouldn't know that grace that God has planted in you is very strong आप ये भी नहीं जानोगे कि अनुग्रह जो खुदा ने आप पर किया है वो कितना मजबूत है, unless His people is going through hardship of life. जब तक उसके लोग जो है वो संघर्षों से गुजरते नहीं तब तक। So the poor people, the poor believers who are a part of the kingdom of God, जो गरीब लोग जो खुदा के राज्य के लोग हैं, their language is this, उनका भाषा यही है that God is enough कि खुदा ही काफी है, even when nothing else is. जब हमारे पास कुछ नहीं है तो भी। Another reason एक और कारण why there are poor people, गरीब लोग क्यों हैं? because God uses the trials of the poor believers क्योंकि खुदा जो है गरीबों के संघर्ष को इस्तेमाल करते हैं to even frustrate the Satan, शैतान को ऐसे परेशान करने के लिए, to put him to shame. उसको लज्जित करने के लिए। Take an example of Job. या अय्यूब का ऐसा उदाहरण लीजिए, Satan was more tormented शैतान और ज्यादा परेशान हो गया when, despite of all the hardship that God's people have gone through, and still they are firm with Him. जो कुछ भी लोगों पर गुजरा उसके बावजूद वो खुदा पर ही निर्भर थे, ये देखकर शैतान और ज्यादा परेशान होता है And faithful. और विश्वास योग्य रहते हैं वो खुदा के साथ। That's what happened in the case of Job. अय्यूब के साथ भी यही हुआ। Every time Satan tries to destroy his faith, हर बार जब शैतान ऐसे कार्य करता है उसका विश्वास नष्ट करने के लिए, he fails. वो असफल रहता है। And that brings more glory to God ये चीज खुदा को ज्यादा महिमा लेके आती है and shame to the devil. और शैतान लज्जित हो जाता है इसके कारण। That's another reason. ये एक और कारण है। One of the greatest reason I could think of एक महान कारण जिसके बारे में हम समझ सकते थे is this. ये है, There are some poor people in the kingdom of God खुदा के राज्य में कुछ गरीब लोग हैं to give us some living glimpse ताकि हमें एक जीवित ऐसे उदाहरण दिखा सके of Christ. यीशु मसीह के बारे में। Because a poor man, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जो है, if he is a kingdom citizen, यदि वो राज्य का नागरिक है, he is not only in the image of Christ in his character, वो अपने चरित्र में ही यीशु मसीह के जैसे नहीं है, but also in his circumstances. लेकिन उसके हालातों में भी वो यीशु मसीह के जैसे ही है। Say we all, हम सब, some of the rich, कुछ अमीर जो है, we are in his image. हम यीशु मसीह के ऐसे चरित्र में हैं। The Holy Spirit is sanctifying us, making us pure, holier and holier. पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करते रहता है और पवित्र बनाते रहता है। We are becoming more and more into the image of Christ. हम और यीशु मसीह के जैसे बनते जा रहे हैं उनकी छवि में, From within. भीतर से। But the poor, लेकिन जो गरीब है, it is not just they have the image of Christ inside. ऐसे ही नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह की छवि जो है उनके अंदर है, You see the glimpse of Christ even in their life, उनके जीवन में भी आप यीशु मसीह को देख सकते हो। in the circumstances of their life. उनके जीवन के जो हालात है उसमें भी आप यीशु मसीह को देख सकते हो। I tell you, हम आपको बताएंगे। they have the background and the foreground of Christ. वो यीशु मसीह का जो पिछला है और आगे है वो सब वो जानते हैं। A poor person has a circumstances what Christ had. एक गरीब व्यक्ति के पास ऐसे हालात रहते हैं जो यीशु मसीह के पास वैसे ही हालात थे। You look at his brown hands, उसके आप हाथों को देखेंगे, hardened with toil. उसके हाथ जो कड़क हो गए हैं ऐसे मजदूरी कर कर। Such were the hands of our Savior. हमारे जो उद्धारकर्ता के हाथ भी वैसे ही थे। You look at their very feet. उनके पैरों की ओर यदि हम देखें, Such were the feet of our Savior.
through the long journeys that he did. हमारे उद्धारकर्ता के पैर भी ऐसे ही थे क्योंकि वो यात्रा करते करते प्रचार करते थे। You see them parching for water, they are sitting at the well or asking for water, वो प्यासे हैं पानी के लिए। same as the Lord did. यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया था। He went at the well when he was thirsty वो कुएं के पास चले गए थे जब वो प्यासे थे and asking for water. और वो पानी की मांग कर रहे थे। You see a poor person, he has no place to rest. एक गरीब व्यक्ति के पास आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। You see Jesus, he said, I have nowhere to lay my head. यीशु मसीह ने भी ऐसे ही कहा कि मुझे अपने सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। A poor person is fed by people. एक गरीब व्यक्ति को लोगों के द्वारा खाना मिलता है, They are supplied by others. दूसरों के द्वारा उन्हें चीजें मिलती है। They sit at the invited table. वैसे लोग जब बुलाते हैं वो जाकर वहीं पे बैठ जाते हैं। That's what even our Lord did. यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही था। When you see them जब आप उन गरीबों की ओर देखते हो, in their circumstances, उनके हालातों में, you will always remember the Savior's poverty. आप हमेशा यीशु मसीह की गरीबी को समझोगे। And you will always remember that how he was rich and he became poor for us. आप ये भी समझोगे कि यीशु मसीह कैसे अमीर था और हमारे कारण वो गरीब होकर आए। How this king, कैसे Jesus, कैसे वो राजा जो यीशु है came down and became poor, living all his privileges, इस पृथ्वी पर आए अपने सारे स्वर्ग को छोड़कर, leaving the throne that he had. अपने सिंहासन को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आकर गरीब बने। Now let's go to verse 10. अभी 10वें वचन में जाते हैं। Again. Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. केवल यही कहा कि हम कंगालों की सुधि ले और इस काम के करने में ही मैं अपने आप का यत्न करता था। Now, after understanding that there are poor people in the kingdom, अभी ये समझने की बात कि खुदा के राज्य में गरीब लोग हैं। now we move to what it is to remember the poor. अभी हम ये समझेंगे कि कंगालों की सुधि लेना क्या होता है। You see, the society, आप ये देखते हो कि समाज जो है, our world, हमारा संसार, they idolizes rich people. वो अमीरों को काफी ऊपर रखते हैं, They overlook on the poor. गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। And that is the kingdom of darkness. और ये अंधकार के राज्य में ऐसे होता है। This is the world that we live in, और हम इस संसार में रहते हैं where the poor are oppressed. जहाँ गरीबों को ऐसे हम कष्ट देते हैं, But we belong to another kingdom. लेकिन हम तो दूसरे राज्य के नागरिक हैं। You see, it says remember the poor. Why doesn't it say remember the rich? यहाँ पर लिखा है कि गरीबों की सुधि लो, ऐसे क्यों नहीं कहा है कि अमीरों की सुधि लो? Because it assumes that we already remember the rich. क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम समझते हैं कि हम पहले से ही अमीरों के से सुधि लेते हैं। By nature, we remember the rich, हमारे स्वभाव के कारण हम अमीरों की सुधि तो लेते ही हैं, but we overlook the poor. लेकिन हम गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। So the word remember is a broad term. यहाँ पर ऐसे सुधि लेना वो बहुत ही बड़ा शब्द है। Not remember is not just a casual thought. Okay, I remembered it. सुधि लेना ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनके बारे में याद करें, But a call to action लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा गया है जिसका ये अर्थ होता है कि हम उनके लिए कुछ कार्य करें। in multiple areas of life. बहुत सारे क्षेत्र में जीवन के, As kingdom people, जैसे हम राज्य के नागरिक हैं, we remember the poor हम गरीबों की सुधि लेते हैं by praying for them. उनके लिए प्रार्थना कर कर। It's one of the things. ये उनमें से एक कार्य है, We pray for the poor गरीबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, because this world is bad, क्योंकि ये संसार जो है वो बुरा है and the rich people have made it worse for the poor in this country. और अमीरों ने गरीबों के लिए ये बहुत ही बुरा करके रखा है इस हमारे देश में। 80 crore of people are dependent upon the government. 80 करोड़ लोग जो है वो सरकार पर निर्भर है अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए। 90% of people have less than salary of 10,000. 90% लोग जो है 10,000 से कम उनकी कमाई है महीने की। Just imagine what has happened to the poor people of our country. आप यही सोच लो कि हमारे देश के गरीबों का क्या हाल हुआ है। So that is why pray for the poor, because the world is oppressing them. इसीलिए हमने गरीबों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो अमीर है या संसार है उन पर बहुत ऐसे जुल्म कर रहे हैं। The kingdom of darkness is oppressing them. अंधकार का राज्य जो है उस पर जुल्म कर रहे हैं गरीबों पर। Regularly in our prayers, remember the poor. हमारे रोज के प्रार्थना में हमें गरीबों की याद करना चाहिए, सुधि लेनी है। Asking God to comfort them.
कैसे कहना चाहिए कि खुदा उनकी सहानुभूति करे, to provide for them. उनको जो चाहिए वो मिले। Another is to include them in your conversations. और एक और बात ऐसी है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातों में उन्हें ऐसे शामिल करें, Because the world talks to the rich. क्योंकि अमीर जो है, संसार जो है वो अमीरों के साथ ही बात करती है। They want to know about the rich. अमीरों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। They want to know what they do in their daily life. वो अमीर क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं, वही यही जानना चाहते हैं लोग। We sit and ponder on those things. अब उन चीजों पर ऐसे विचार करते रहते हैं। We are eager to know what that big celebrities are doing, or all rich people what they are doing. We are eager to know that. हम ये जानने के लिए बहुत ऐसे उत्सुक रहते हैं कि अमीर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रसिद्ध लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। Even in the churches, कलीसिया में भी ऐसे ही हुआ है। you see, you are eager to know the rich person, हम ऐसे अमीर जो है उनको जानना चाहते हैं। a respectable person in the church. जो कलीसिया में ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। But what about that poor family in the church? लेकिन कलीसिया के गरीब परिवार के बारे में क्या? Do you know them? क्या आप उन्हें जानते हो? Next time when you come, would you see them and say, I know you? अगली बार जब आप आओगे तब आप उस गरीब परिवार की ओर देखकर क्या ऐसे कहोगे कि हाँ हम तुम्हें जानते हैं? When you see them and say that I remember you in my prayers, और आप उनकी ओर देखकर ऐसे कहेंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो तुम्हारी याद करता हूँ। make sure you know them. ये जान लो कि तुम्हें उन्हें जानना जरूरी है। Make sure you do not forget them. उन्हें कभी नहीं भूलना है हमें। Make sure that you recollect them. उनके बारे में हम सुधि लेते रहे। Say for example, a poor man wants to come and talk to you. मान लो कि गरीब व्यक्ति को आपके साथ आकर बात करना है, And you are leaving from the church. और आप कलीसिया से निकल रहे हो, And you are in a hurry and you say that no, I'm in a hurry, I need to go home. और आप हो सकता है आप जल्दी में हो तो आप कहते हो कि नहीं मैं तो जल्दी में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। But at the same time, if a rich person comes and says, I want to talk to you, और उसी समय यदि एक अमीर व्यक्ति आप पर आकर कहे कि मुझे आपके साथ बात करनी है, you are going to leave everything and stay with him and talk to him. आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उस अमीर व्यक्ति के साथ बैठकर बात करोगे Tell me what happened. कि हाँ बताओ क्या हुआ? Why? Because you respect the rich more than the poor. क्यों? क्योंकि आप अमीर को ज्यादा आदर देते हो गरीबों से। How do you talk to people who are lower than you? नीचे के स्तर के लोगों के साथ आप किस तरीके से बात करते हो? In the church of God, in the poor believers, जो it is same for them, but also outside. जो कलीसिया में है गरीब लोग, वैसे ही बाहर जो है गरीब लोग, उनके साथ आप कैसे व्यवहार करते हो? Because even they are oppressed by this kingdom of darkness. क्योंकि इस अंधकार के राज्य के द्वारा उन पर भी पीड़ा और कठिनाइयां आ रही है। How do you talk to them? आप उनके साथ कैसे बात करते हो? You do not ignore the poor believer. आप जो गरीब विश्वासी हैं उनको नजरअंदाज नहीं करते हैं। During fellowship or in the street, when you see them, you do not ignore them. जब आप संगति करते हो या सड़क पर उनसे मिलते हो तो उससे नजरअंदाज नहीं करते हो। Go again to James. फिर से याकूब में जाते हैं। Chapter 2. तो Just see what this is talking about. देखो यहाँ From पर verse 1. 1 से My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there, or sit down at my feet, have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of kingdom when he has promised to those who love him? 2 का 1 से पढ़ते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, हमारे महान युक्त प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए,
और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहे, तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तुम यहाँ खड़े रहो और मेरे पाँव के पास बैठो। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में, धन से और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने कंगालों का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हारे कचहरियों में घसीटते नहीं? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? 6. But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you in court? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? You see, this is the story in the churches. कलीसिया में देखो यही हो रहा है। You see, they respect the poor, they respect the rich person. अमीर व्यक्ति को वो आदर देते हैं। They talk nicely to the rich person and they ignore the poor. उनके साथ काफी अच्छे से बात करते हैं और गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। That's why it is a duty when they say, remember the poor. इसलिए ये कार्य के समान होता है कि हमें गरीबों की सुधि लेने हैं। Remember the poor even in their material support. जो कुछ उन्हें रोजमर्रा के जीवन के लिए चाहिए उसमें भी उनकी सुधि लेनी है। Whatever is in your ability. जो कुछ आपकी क्षमता में आप कर सकते हो वो हमें करना है। Say example. मान लो एक उदाहरण, You see, churches today favor आजकल की कलीसिया में ऐसे चल रहा है, rich people and successful people. अमीरों को और जो प्रसिद्ध लोगों को ऊपर रख रहे हैं। That's why they do not remember the poor. इसलिए वो गरीबों की सुधि नहीं लेते हैं। So remember the poor, supporting those in need जो गरीब रहते हैं उनको ऐसे संभालना चाहिए हमें, and honoring them. और उनका भी आदर करना है। Honor the poor man. जो गरीब व्यक्ति है उसका आदर करना है। You teach your children आप अपने बच्चों को सिखाते हो that character जो एक चरित्र है that defines a person, वो एक मनुष्य क्या है वो दिखाता है चरित्र के द्वारा। not cash. जिस उनके पास जितना पैसा है वो नहीं। You teach them to respect and love आप उन्हें ये सिखाते हो कि आप उन्होंने आदर करना चाहिए और प्यार करना चाहिए poor people गरीबों को, regardless of their income. चाहे उनकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो। You respect and love people. आप लोगों को ऐसे प्यार करें और उनका आदर करें। Don't see how much money they have. ये मत देखो कि उनके पास कितना पैसा है। You show them, you take your children to poor houses, आप अपने बच्चों को गरीबों के घर लेकर जाओ, not to have pity on them, उन पर दया करने के लिए नहीं, but to show them what faith is. उन्हें यह दिखाने के लिए कि विश्वास क्या है। To show them how rich they are in love, in joy. वो गरीब कितने अमीर है प्यार में और आनंद में। You may be a manager in the office, हो सकता है आप ऑफिस में मैनेजर हो, but show your Christ-like kindness even to the cleaner in that office. लेकिन आप जो यीशु मसीह के जैसे रहना चाहिए जो आपके ऑफिस में साफ सफाई करता है उस व्यक्ति के साथ भी। Because you see, some people are not poor by wealth. क्योंकि कुछ लोग जो है पैसे के कारण गरीब नहीं है, They are poor mentally. वो अपने दिमाग में गरीब है, They are poor emotionally. वो अपने भावनाओं की वजह से गरीब है। There are no people who love them. उनके साथ कोई प्यार नहीं करता है, There are no people who think about them. उनकी कोई सुधि नहीं लेता है, They are neglected. उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। So they are poor even mentally. वो अपने मानसिक तौर पर भी ऐसे खुद को गरीब समझते हैं। Remember the poor. कंगालों की या गरीबों की सुधि लो। Before I close, let's see Matthew chapter 25. बंद करने से पहले मत्ती 25 खोलते हैं। Yes, the last section of Matthew 25 is the final judgment when the king himself is going to judge. 25 का अंत अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर न्याय का दिन है जो राजा खुद न्याय करने वाले हैं। And you see,
what Jesus is saying there. और देखो यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं, 36. 36। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। 37 also. तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और प्यासा देखा और पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किए, वह मेरे ही साथ किए। He's talking about the poor believers, जो गरीब विश्वासी है, यीशु उनके बारे में बात कर रहे हैं। your poor brothers. आपके जो गरीब भाई है उनके बारे में। So he's telling, when you do all these things to your poor brothers in the church, जब आप कलीसिया के गरीब भाइयों के लिए ये सारी चीजें करते हो, you are doing it to me. आप यीशु के लिए कर रहे हो। The king will answer them, truly I say to you, you did it to the one of the least of these, that is the poor, इनमें से छोटे मतलब गरीब, you did it to me. तुमने मेरे लिए किया है। Sadly today's church, the people in the church, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की कलीसिया के जो लोग हैं, forget about the poor, they don't even do things for their own family members. गरीबों की बात तो छोड़ी, तो वो अपने खुद के परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। They don't think even of their parents, अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचते हैं। who were once poor. जो एक बार ऐसे गरीब थे, They don't do anything for them. उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, They don't think of them. उनकी सुधि भी नहीं लेते हैं। So understand this. अभी ये समझना जरूरी है। In all this, when we see examples upon examples, and even in James, when we see an example of the church, जब हम ये सारे चीजें देखते हैं, उदाहरण पे उदाहरण, याकूब की पत्री में भी हम उदाहरण देखते हैं, it was just one of the scenarios. ये एक ही ऐसी चीज थी जो घटी थी वहाँ पर। But there are a lot of things in day-to-day life, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, and it cannot be written down. और ये सारे हम लिख तो नहीं सकते हैं। So one of the examples is given there, वहाँ पर ऐसे एक उदाहरण दिया गया है, because the point is not the scenarios. क्योंकि जो मुद्दे की बात है वो जो घटना घटी है उसके बारे में नहीं है। It is exposing the heart of man. ये मनुष्य का हृदय कैसा है वो दिखाने के लिए है। It is about the heart, ये हमारी हृदय के बारे में है। and that is the same in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में भी ऐसी बात है ये। In the kingdom of God, it is the heart that matters and not your wallet. परमेश्वर के राज्य में आपका हृदय जो है वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है, आपका पैसा नहीं। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, I come before you now. स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। God, dear King, पिता, आप राजा हो, and I pray, O Lord, और हम प्रार्थना करते हैं that we will be in one of those people whom you accepted, Lord. हम उन लोगों में से रहेंगे जिन्होंने आपको चुना है। Lord, प्रभु, convict us हमारे मन में प्रकाश डालो that we remember the poor ताकि हम गरीबों की सुधि ले सके in our prayers, Lord, हमारी प्रार्थनाओं में, because it is a fight, Lord. क्योंकि ये एक संघर्ष है। This kingdom of darkness ये अंधकार का राज्य जो है is oppressing poor day by day, Lord. वो गरीबों पर ऐसे कठोर ऐसे परिश्रम कर रहे हैं। If not your church, यदि आपकी कलीसिया न हो, whom you have provided, whom you have given temporal things, जिसको आपने सारी चीजें दी है, if they don't help the poor, यदि वो ही गरीबों को ना संभाले, then how this kingdom will work, Lord? तो ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? Lord, you have given us, Lord. खुदा, आपने हमें सब कुछ दिया है। You have given us to remember them, Lord. आपने हमें दिया है ताकि हम उन्हें याद कर सकें। To remember the poor of your kingdom, Lord. आपके राज्य के गरीबों की हम सुधि ले। And I pray, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं that we are mindful of them, खुदा, हम उनके बारे में सोचते रहे, that we talk to them, उनके साथ बात करें,
that we think of them. उनके बारे में विचार करें। Give us a heart, Lord, हमारा हृदय ऐसे बना दो that we love them, Lord. ताकि हम उनसे प्यार कर सके, Because you said love one another. क्योंकि आपने कहा है एक दूसरे से प्यार करो। Lord, let there be no partiality in this church. प्रभु इस कलीसिया में कोई पक्षपात ना हो। Let this be your kingdom, my Lord. ये आपका राज्य रहे, Where the poor and rich are side by side, Lord. जहाँ पर गरीब और अमीर दोनों साथ में रहे, Are loving each another, Lord. एक दूसरे से प्यार करते हुए, Not seeing their circumstances or their wealth. अपने हालातों पर या अपने पैसों पर नजर नहीं रखते। I pray this, my Lord. हम ये प्रार्थना करते हैं, And I pray, Lord, that you take care of them, my Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें संभाले रखें, You protect them then from this evil world, Lord. आप इस संसार से उन्हें बचाए रखो। Through your church, you will do this, my Lord. आपकी कलीसिया के तरफ से आप करोगे ये। And I pray, O Lord, for the widows of the church, Lord. हम प्रार्थना करते हैं विधवाओं के लिए, Because it is not only the poor, but also the widows that you love, Lord. क्योंकि सिर्फ गरीब नहीं, आप विधवाओं से भी बहुत प्यार करते हो। O Lord, Prabhu. show us Christ in the poor, Lord. हमें गरीबों में यीशु को देखने दो। Show us how weak we are in faith, Lord, by looking at the poor, Lord. हमें दिखाओ कि हम अपने विश्वास में कितने कमजोर हैं, जैसे हम गरीबों की ओर देखते हैं। Open our eyes, Lord. हमारी आंखों को खोल दो, Open our eyes to see the daily life of the poor believer, हमारी आंखों को खोल दो ताकि हम जो विश्वासी गरीब है उनके बारे में देख सके, a poor citizen of your kingdom. आपके राज्य का एक गरीब व्यक्ति जो है उसकी ओर देख सके। I pray this हम ये प्रार्थना in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में करते हैं। Amen. आमीन।